Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video we will discuss about the brief history of the virology. You might be thinking that why I said about the brief history of the virology, because the history of the virology is enormous. So I just cut short the history into some important points, including different important milestones of the veterinary importance in the field of virology, and you might face some of the questions from these important milestones in your college and the competitive examination. So simply, the word virus appeared in the year 1599 and originally meant the venom or the poison in the Latin. A very early form of the vaccination known as the variolation was developed several thousand years ago in the China. It involved the applications of a material from a smallpox sufferers in order to immunize the other. The ancient Chinese developed a snuff made from the powdered smallpox scabs and was blown into the nostrils of the uninfected individuals. Some individuals died from the therapy. However, in most of the cases, the mild infection produced offered the protection from the later more serious infection. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the brief history of the virology. So simply the word virus appeared in the year 1599 and originally meant as venom or poison in Latin. देखो, अभी जो वर्ड वायरस था ना, इसका सबसे पहले इस्तेमाल सन 1599 में करा गया था, जिसका मतलब होता था वेनम और पॉइजन इन द लैटिन टर्म्स. Moving on, a very early form of the vaccination known as variolation was developed several thousand years ago in China. देखो, अब जो अर्ली फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो उसको हम किस नाम से जानते थे? वेरियोलेशन के नाम से, जिसे कई हजारों साल पहले चाइना में डेवलप किया गया था. ठीक है. इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स सफरर्स इन ऑर्डर टू इम्यूनाइज अदर. अब इस वेरियोलेशन के मेथड में क्या करा जाता था कि जो भी स्मॉल पॉक्स बीमारी से सफर बंदे होते थे, वहां से मटेरियल को कलेक्ट करा जाता था और दूसरों को, हेल्दी पर्सन्स को इम्यूनाइज करने की कोशिश करी जाती थी. ठीक है. मूविंग ऑन, द एंशिएंट चाइनीज डेवलप्ड अ स्नफ मेड फ्रॉम अ पाउडर्ड स्मॉलपॉक्स स्कैब दैट वाज ब्लोन इनटू द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल. देखो, अब इस वेरियोलेशन के मेथड में क्या होता था कि जो चाइनीज लोग थे ना, उन्होंने क्या करा, एक स्नफ मेड पाउडर बनाया फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स स्कैब. देखो, कोई भी पर्सन अगर स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड है तो उसके स्कैब में से चाइनीज ने क्या बनाया, पाउडर बनाया और उसको अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की नॉस्ट्रिल से ब्लो करवाया ताकि वो लोग उसको सूंघ लें इन ऑर्डर टू गेट इम्यूनाइज. Some of the individual died from this therapy. However, in most of the cases, the mild infection produced offered the protection from the later more serious infection. अब इस वेरियोलेशन के प्रोसीजर के दौरान, जिसमें वो किसी भी स्मॉल पॉक्स सफरर से मटेरियल कलेक्ट करके एक अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल को उसके नॉस्ट्रिल से उसका मटेरियल को इनहेल कराते थे, इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ द पीपल में क्या हुआ, एक माइल्ड इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ दैट विल लेटर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल पॉक्स. ठीक है. Moving on, in year 1770, Lady Mary Wortley Montague observed the practice in the Istanbul and attempted to popularize it in Britain, but encountered the considerable resistance. In 1796, Edward Jenner developed a much safer method using a cowpox to successfully immunize a young boy against a smallpox. Taking a pus from the cowpox lesions on a milkmaid hen, Jenner inoculated an 8-year-old boy, James Phillips. 6 weeks later, Jenner variolated 2 sides on the fifth arm with the smallpox, yet the boy was unaffected by this as well as subsequent exposures. So देखो भाई, अब हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं. So in the year 1717, the Lady Mary Wortley Montague observed the practice in the Istanbul and attempted to popularize it in Britain, but encountered a considerable amount of resistance. अब देखो, 1717 में क्या हुआ, एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी वॉर्टली मॉन्टेग. उन्होंने वेरियोलेशन की टेक्निक जिसे चाइनीज ने डेवलप करा था उसे इस्तांबुल में प्रैक्टिस करा एंड शी वांट इट टू पॉपुलराइज इन द ब्रिटेन आल्सो, बट उन्हें वहां सफलता नहीं मिली एंड शी
faced a considerable amount of resistance from the Britishers. अब आगे बढ़ते हैं. इन द ईयर 1796 द एडवर्ड जेनर डेवलप्ड ए मच safer method using a cowpox to successfully immunize a young boy against a smallpox. अब क्या हुआ, 1796 में एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने एक सेफर मेथड का डेवलपमेंट करा जहां पे वो काउपॉक्स की मदद से एक यंग लड़के को स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनाइज करते हैं. उन्होंने क्या करा, सिंपली ही टेक द पस फ्रॉम अ काउपॉक्स लीशन ऑन ए मिल्कमेड हैंड. जेनर इनोकुलेटेड अ 8-year-old boy James Phipps. 6 weeks later, Jenner valulated 2 sites on the Phipps arm with the smallpox, yet the boy was unaffected by this as well as the subsequent exposures too. अब उन्होंने क्या करा, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले काउपॉक्स लीशन से पस को इकट्ठा करा और जो जेम्स फिप्स 8 साल का लड़का था वहां पे इनोकुलेट कर दिया. ठीक है, उसके बाद 6 हफ्तों के इंतजार के बाद उन्होंने फिप्स के आर्म पे फिर से स्मॉल पॉक्स का वायरस को इनोकुलेट करा, लेकिन उस समय वो जो लड़का था पूरी तरीके से इम्यूनाइज हो चुका था. उसको स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से कोई भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए एंड ही वाज इम्यूनाइज्ड फॉर द फर्दर फ्यूचर एक्सपोजर्स टू दैट पर्टिकुलर वायरस. ठीक है. So moving on, the vaccination against the other viral disease followed, including the successful rabies vaccination by the Louis Pasteur in 1885 in a 9-year-old boy named the Joseph Mister, who was badly mauled by a rabid dog. The boy received 13 inoculations over the 11 days at 6 July 1885 to 16th July 1885, each inoculation using virus that had been weakened for a shorter period of a time. The Pasteur produced the first vaccine for the rabies by growing the virus in rabbits and then weakening it by drying the affected nerve tissues. The rabies vaccine was initially created by the Emile Roux, a French doctor and a colleague of a Pasteur, who had produced a killed vaccine using this method. The vaccine had been tested in 50 dogs before its first human trial. So देखो भाई, अब हम हिस्ट्री में आगे चलते हैं. So simply the vaccination against the other viral disease followed the including successful rabies vaccination by Louis Pasteur in 1885 in a 9-year-old boy named Joseph Mister, who was badly mauled by a rabid dog. अब जो वैक्सीनेशन शुरू हुई थी फ्रॉम चाइनीज कल्चर, अब धीरे धीरे अदर वायरल डिजीज के लिए भी ये प्रोसेस को इनहांस करा गया. ठीक है. इन 1885 में लुइस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने रेबीज की वैक्सीनेशन करी एक 9 साल के लड़के में जिसका नाम था जोसेफ मिस्टर, जिसे एक रैबिड सफरिंग डॉग ने बहुत बुरी तरीके से काटा था. ठीक है. मूविंग ऑन, the boy received 13 inoculations over 11 days from 6 July to 16 July 1885, each inoculation using virus that had been weakened for a shorter period of a time. अब जो जोसेफ मिस्टर नाम का लड़का था, सबसे पहले यहाँ पे इस पे रेबीज की वैक्सीनेशन लगाई गई बाय लुइस पास्चर. इस लड़के में 13 इंजेक्शंस दिए गए वैक्सीन के, 13 बार इनोकुलेट करा गया 11 दिनों में फ्रॉम 6 जुलाई टू 16 जुलाई 1885. और हर एक बार जब इनोकुलेट करा जाता था वायरस को, तो वो वायरस कैसा होता था, वीक वायरस होता था फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम. ठीक है. पास्चर प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज बाय ग्रोइंग द वायरस इन रैबिट्स एंड देन वीकनिंग इट बाय ड्राइंग द अफेक्टेड नर्व टिश्यूज. अभी जो पास्चर थे, इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन रेबीज की किस तरीके से डेवलप करी. बेसिकली इन्होंने जो रेबीज वायरस है, लाइजा वायरस, उसको रैबिट्स के अंदर ग्रो करा. ठीक है. और फिर इसको वीक करा बाय ड्राइंग द अफेक्टेड नर्वस टिश्यूज ऑफ द रैबिट. ठीक है. मूविंग ऑन, द रेबीज वैक्सीन वाज फर्स्ट और इनिशियली क्रिएटेड बाय द एमिली रॉक्स, अ फ्रेंच डॉक्टर एंड अ कलीग ऑफ अ पास्चर हु हैड प्रोड्यूस्ड अ किल्ड वैक्सीन यूजिंग दिस मेथड. सबसे पहले रेबीज की वैक्सीन जो है ना, एमिली रॉक्स नाम की एक फ्रेंच डॉक्टर ने बनाई, जो कि पास्चर के कलीग थी, और उन्होंने किल्ड वैक्सीन को सेम मेथड से बनाया जिस तरीके से पास्चर ने सबसे पहले रेबीज की वैक्सीन लगाई थी उस जोसेफ मिस्टर नाम के 9 साल के लड़के में. ठीक है. मूविंग ऑन, द वैक्सीन हैड बीन टेस्टेड इन 50 डॉग्स बिफोर इट्स फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल. और इस वैक्सीन को, जो रेबीज की वैक्सीन डेवलप करी गई, इसे सबसे पहले 50 कुत्तों पे ट्रायल करा गया एंड देन इट वाज अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स.
ठीक है. Moving on, the Louis Pasteur coined the term vaccine in the honor of the Edward Jenner. The word comes from the Latin word vaxa, meaning the cow, a virus that mainly affects the cow. The cowpox virus was used in the first scientific demonstration that giving a person one virus could protect against a related and more dangerous one like smallpox. सो देखो भाई, अब हम लोग हिस्ट्री में आगे बात करेंगे. सो सिंपली द लुइस पास्चर कॉइंड द टर्म वैक्सीन इन द ऑनर ऑफ द एडवर्ड जेनर. अभी जो लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन टर्म को कॉइन करा इन द ऑनर ऑफ द एडवर्ड जेनर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मूविंग ऑन, द वर्ड comes from the Latin origin, that is vaxa, that means the cow. अब ये जो वैक्सीन टर्म था ना, ये लैटिन ओरिजिन वर्ड था और कहां से आया था? वैक्सा से, जिसका मतलब होता था काउ. A virus that mainly affect the cow, that is cowpox virus, was used in the first scientific demonstration that giving a person one virus could protect against the related and more dangerous one, that is smallpox. अब सबसे पहले जब साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन करी गई थी, तो एक वायरस जिसका नाम था काउपॉक्स वायरस, जो कि काउस को अफेक्ट करता था, उसके बारे में बताया गया कि अगर हम इस काउपॉक्स वायरस को ह्यूमंस में इनोकुलेट करते हैं तो दैट विल प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट सम रिलेटेड वायरस एंड सम डेंजरस वायरस लाइक स्मॉल पॉक्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे पहले वैक्सीन टर्म किसने कॉइन करा, किसके ऑनर में करा, एंड द वर्ड वैक्सीन वाज फ्रॉम व्हिच ओरिजिन? इट वाज फ्रॉम द लैटिन ओरिजिन. अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन में किस वायरस की बात करी गई थी? तो इट वाज काउपॉक्स वायरस अफेक्टिंग द काउस. ठीक है. तो आप लोग को इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है कि आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टारगेट कर. ठीक है. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel. Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.